Okay, so everyone can see my screen and am I audible, right? Yeah, bro. Okay, okay, Yes, yes. okay, fine. So we were discussing about adding an ESXi host to the cluster, right? So what we need the IP or host name, and it should be pingable and communicable from vCenters. Second, we need the credential, and the credential is we need the root credential, right? So next, again, ESXi is also a licensed Excuse product. me, Abu Bhai, we are discussing that versions which will not support Okay, vCenter. I was drawing something. Yes, you reminded me. Correct. I I miss it. Okay, so if the vCenter version is 7.0 and either of the ESXi is either the same or below it, it will work. You can add it. Okay, so I tried to add two ESXiOs. One is 7.0, another one is 6.5. So it is equal to vCenter version and it is below. It will work, no problem. Fine. But if you have another example, you have vCenter 6.5, version 6.5, but what you have it, you have, 1 second, yes, you have another ESXi, yes, which is 7.0. So let's suppose you have another ESXi which is 7.0 version. So if you add it, you will not be able to add it. You got the idea? If the ESXi version is higher than vCenter server, it will not allow you to add to the vCenter server. So it should be either equal to or less than. So suppose that if my vCenter and everything is currently 6.7 or 6.5 and I want to upgrade the entire infrastructure including vCenter server, ESXi and everything. So first I need to upgrade which component, ESX or vCenter? Can anyone guess? First what I vCenter. okay, yes, Yes, vCenter. vCenter. Exactly, correct, you are right. So first I need to upgrade my vCenter server, then I should proceed with the ESXi upgrade, right? So that is the concept I wanted to highlight here. Okay, all right, let's move on parallelly. We will add it. We will add. So in current scenario, both vCenter and ESXi is 6.7, sorry, 6.5. You can add it. So it is open to you. In this lab itself, you can try any of the version 6.7. So you can install a ESXi 7.0. You can install a ESXi 6.7, 6.5, anything. So as you already have this vCenter, later on you can try to add any higher ESXi version and see the error. It will throw an error like you cannot add it. Okay, now we're talking about the licenses. So vCenter is a licensed product as well as ESXi host itself is a licensed product. You need to buy out the license from the VMware website. Okay, so in our lab, as we have 60 days, we will use the evaluation period. No problem. By default, you can use it for 60 days. No problem. We don't need any license. Okay, so lockdown. As I discussed earlier, lockdown is a word which was there since VMware started. It's not like the new corona or pandemic has given this word. It is the word which is being used since so many years. So what is this lockdown mode में क्या होता है? There are three scenarios. ESX की security से related है. Number one, it is related to ESX की security. क्या करेगा ये? अगर आप इसको डिसेबल करोगे तो देयर इज नो सिक्योरिटी. ओके, अगर इफ यू इनेबल इट, यू हैव टू ऑप्शन, नॉर्मल और स्ट्रिक्ट. कभी कभी होता है ना, लॉकडाउन नॉर्मल है और लॉकडाउन स्ट्रिक्ट है, राइट? तो सिमिलरली यहाँ पे भी मोड जो है आपकी सिक्योरिटी का क्या लेवल रखना चाहते हैं. इट इज वेरी क्लियर. नॉर्मल मोड में द होस्ट इज एक्सेसिबल ओनली थ्रू द लोकल कंसोल और वी सेंटर. या तो आप वी सेंटर से उसे कनेक्ट कर सकते हो या फिर DCUI. लोकल कंसोल मतलब DCUI. व्हाट इज DCUI? कोई बता सकता है क्विकली? UI. Direct control user interface. यस, ये जो LUC स्क्रीन आती है हम डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं कंसोल पे, वो होता है DCUI कंसोल. तो ये दो जगह से एक्सेसिबल होगा. तो फिर कहां से नहीं होगा? SSH से नहीं कनेक्ट होगा.
ठीक है, डायरेक्टली आप अगर होस्ट पे ब्राउजर के थ्रू कनेक्ट करेंगे वहां से भी नहीं होगा। तो ये सिर्फ दो जगह से होगा, वी सेंटर से और डीसीओ कंसोल से, दैट्स इट। ये पूछ सकते हैं, बहुत बार पूछ लेते हैं, व्हाट इज लॉकडाउन मोड, व्हाट आर द टू ऑप्शंस, नॉर्मल एंड स्टिक, व्हाट इज द डिफरेंस। सो स्टिक में क्या होगा, होस्ट इज एक्सेसिबल ओनली थ्रू वी सेंटर, डीसीओ विल बी स्टॉप्ड। डीसीओ से आप कंसोल पे जाओगे तो कनेक्ट नहीं होगा, ओनली थ्रू वी सेंटर। तो आप इसको रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो कि वो कहाँ कहाँ से एक्सेस कर सकते हो। सो देयर इज ओनली वन ऑप्शन इफ यू पुट द रेस्ट्रिक्ट मोड। बाय डिफॉल्ट कंपनीज में डिसेबल्ड होता है, नो इश्यूज। नाउ फिनिश। सो फर्स्ट नेम एंड लोकेशन, then credential, then it will give you the summary of the ESX, like what is the version and everything. Okay, then it will give you the license information, अगर आप अभी ऐड करना चाहते हो अभी कर दो, वरना बाद में भी आप कर सकते हो, no issues. Then mode, lockdown mode enable करना है कि नहीं, intro question है, again somebody can note down. Next you can finish it. So in next class I will ask you what is strict lockdown. So you can see in the recent task it is getting added. You see the percentage 80%. Okay, so let it be finished here. Let's see the topics. Okay, तो आज हमने लॉगिन किया, डेटा सेंटर बनाया, क्लस्टर बनाया और एक होस्ट को भी ऐड कर दिया। अब एक्चुअल एक L1 एडमिन, L1 VMware एडमिन का काम होता है ये VM क्रिएट करना, किस पे, ESX पे। ठीक है, वो भी कर लेते हैं। ओके, वे गुड। हमारा ESXi is added to the vCenter और added to the cluster. तो एक और ऑप्शन है हमारे पास, इसको क्लस्टर के बजाय मैं सीधा उठा के डेटा सेंटर में ऐड कर दूं, मैंने यहाँ से निकाल दिया इसको। okay? तो इसके लिए पहले मेंटेनेंस मोड में डालना पड़ेगा। अब हम डिस्कस करते हैं मेंटेनेंस मोड। मैनी ऑफ यू ऑलरेडी नो इट, बट फॉर दोज हु डोंट नो, मेंटेनेंस मोड में क्या होता है, जब भी आपको कोई एक्टिविटी परफॉर्म करनी, मेंटेनेंस करना, राइट, कोई इस पे काम करना है, क्या काम हो सकता है, ESX को आप अपग्रेड करना चाहते हो, उसके लिए आप रिबूट करोगे, राइट, या फिर कोई पैचिंग करनी है ESX पे, कोई पैच अप्लाई करना है, एनीथिंग यू वांट टू डू ऑन द ESXi host, first thing is you need to migrate all the VM and then put the ESX into maintenance mode. Maintenance mode में डालने से होता क्या है, यहाँ लिखा हुआ भी है, a host in maintenance mode does not perform any activity on virtual machine. तो ये वर्चुअल मशीन की कोई भी काम नहीं करेगा, ये वर्चुअल मशीन इस पर रन नहीं हो सकती अगर ये मेंटेनेंस मोड में रहेगा। फर्स्ट थिंग, यहाँ तक कि आप कोई नई मशीन भी नहीं क्रिएट कर सकते, जिसको प्रोविजनिंग वर्ड बोल रहे हैं। प्रोविजनिंग मतलब न्यू VM क्रिएशन, इट विल नॉट आल्सो वर्क। होस्ट अप एंड रनिंग रहेगा, ठीक है। यू माइट द पावर ऑफ, या तो आपको मशीन सारी माइग्रेट करनी पड़ेगी या सारी शट डाउन करनी पड़ेगी, तभी आप क्या कर सकते हो, मेंटेनेंस मोड में डाल सकते हो। वी एज ए VMware admin most of the time while putting the host into maintenance mode we see lot of error issues challenges, right. जब भी हम मेंटेनेंस में डालते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, अगर मशीन माइग्रेट नहीं हो रही तो आपका ये टास्क स्टक हो जाएगा, मेंटेनेंस में जाएगा नहीं। सो टू पुट अ होस्ट इनटू मेंटेनेंस मोड, ऑल द VM, ये है, हम यहाँ देख सकते हैं कौन कौन से, अभी क्योंकि नया एडिट है अभी हमने कोई VM नहीं बनाया, लेकिन प्रोडक्शन में आपको यहाँ पे नंबर ऑफ VMs दिखेगी। सारी VM को आपको इस क्लस्टर के दूसरे ESX पे माइग्रेट करना पड़ेगा। लेट मी क्विकली ऐड अनदर ESX एज वेल। राइट क्लिक, ऐड होस्ट, देन IP, व्हाट इज द IP, क्विकली कॉपी पेस्ट, दूसरे ESX का IP है 11, then next, then password is root, then admin at 123, next। अब मैं क्विकली कर रहा हूँ क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट तो सब पता ही है, डिस्कस कर लिया है, टाइम वेस्ट नहीं करना। हम क्या रहे हैं, ओके ओके, आई गॉट इट। एक इसमें ना ऑलरेडी डेटा स्टोर सेम नाम से क्रिएटेड है, लेट मी रीनेम इट। डेटा स्टोर क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। वेयर इज रीनेम, सो डेटा स्टोर आई विल मेंशन लाइक ESXi 1 का है। Okay, now I will try to add once again, add host, अभी तक कोई कंफ्यूजन किसी को?
अभी हमने डेटा सेंटर बनाया, क्लस्टर बनाया, उसमें ES6 ऐड किया, दूसरा ऐड कर रहे हैं. Any question anyone have? Quickly ask me. No question. Everything is clear. Good. We're still taking the same name, although I have renamed it, but maybe it is not reflecting here. Let me refresh it. We'll come back in some time. Don't waste your time. Okay, how to create a VM on the ESXi host? इस पे चलते हैं हम. ये हमारा फॉर एग्जांपल ESX है. तो ESX इस पे हम न्यू VM बनाएंगे. प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में ESX पे ही हम VM बनाते हैं, राइट? फ्रॉम द vCenter. तो राइट क्लिक न्यू VM. ठीक है. सो यू हैव लॉट ऑफ ऑप्शन. क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन, डिप्लॉय फ्रॉम टेम्पलेट. टेम्पलेट क्या होता है एक पूरा अलग टॉपिक, एक क्लास है, हम उसमें बनाएंगे व्हाट इज टेम्पलेट. क्लोन क्या होता है, ठीक है, एग्जिस्टिंग मशीन क्लोन करना है टेम्पलेट को, टेम्पलेट टू टेम्पलेट, कन्वर्ट टेम्पलेट, ऑल द ऑप्शन विल डिस्कस इन डिटेल, बट लेट्स फोकस ऑन द फर्स्ट वन. क्या करने जा रहे हैं ऑन वन EFC6i host, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज क्रिएटिंग अ न्यू वर्चुअल मशीन. मशीन का आप नाम क्या दोगे? फॉर एग्जांपल विंडोज या फिर लिनक्स या एप्लीकेशन. हर कंपनी का एक अलग स्टैंडर्ड होता है. इट इज अप टू द ऑर्गेनाइजेशन. VMware डोंट रिकमेंड एनीथिंग. इट इज ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी. वो नेमिंग कन्वेंशन क्या रखते हैं, कोई ऐसे रखता है जैसे फॉर एग्जांपल WIP फॉर विप्रो, मे बी TCS और एनीथिंग. देन यू विल नेम इट app1. if it is database they will mention is DB1. okay, DB1. then it is production or QA, you will mention prod1 or prod2, like that. And they will mention like hyphen Windows for Windows, hyphen LNX for Linux. So every organization has their own naming nomenclature or naming convention policies. So in our lab we will do is like Windows, and then hyphen P you can say for production, then we'll mention as one first VM. Next. So within that cluster, if you have multiple ESXi hosts, it will ask you which one, on which ESXi host you want to create. So we will select one, ESXi1. Then it will ask you on which data store, किस का storage कहाँ से देना है. If you have multiple data store, you can have an option to select it. Next. Then leave it default. Then next we will select the guest OS. So यहाँ पे guest OS चूज करने से क्या फर्क पड़ेगा, तो बता सकता है? क्या ये जो सा वर्जन सेलेक्ट करूंगा वो इंस्टॉल कर देगा या सिर्फ सेलेक्ट करने के लिए आ रहा है ऑप्शन? एनीवन कैन ट्राई इट. Only for selection. Only for selection. तो इसमें लिखा हुआ भी आइडेंटिफाई द गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम here allows the wizard to provide the appropriate defaults for the operating system installation. जैसे फॉर एग्जांपल आप मार्केट से एक नई फिजिकल मशीन लेने जाते हैं, PC या लैपटॉप, तो आपको जैसी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप मशीन को कस्टमाइज या कॉन्फ़िगर करा सकते हो, राइट? आपको अगर कोई लिनक्स इंस्टॉल करना है या कोई हैवी विंडोज या गेमिंग के लिए यूज करना है, तो एक्चुअली ये उसके इन्वायरमेंट के हिसाब से VMs को रेडी कर देता है. तो make sure you choose the correct one. अगर आपको Windows install करनी है तो choose the Windows one. It is not actually installing any operating system. It is just asking the wizard to prepare the machine as per your choice of the OS. जो OS आपको डालना है उसके हिसाब से मशीन को प्रिपेयर करेगा ये. तो Linux डालना तो Linux select करना, right? Now क्योंकि ये वर्चुअल है, you can modify anything like CPU कितना रखना है 1 और 2, मेमोरी कितना रखना है. फॉर एग्जांपल मुझे तो सिर्फ MB में देना है. फॉर एग्जांपल अभी हम कुछ कर नहीं रहे. 500 MB. हार्ड डिस्क कितनी चाहिए, तो इट्स ओके 40 GB. कैन वी गिव 40 GB? नो. क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि टोटल जो स्पेस है डेटा स्टोर में फ्री, वो सिर्फ और सिर्फ 31 GB फ्री है. अभी हम और डेटा स्टोर बनाएंगे, नो प्रॉब्लम. जस्ट टू शो यू कि हमारे पास कैसे ऑप्शन आता है. यू कैन कस्टमाइज CPU. ओके, you can customize the RAM size, you can customize the hard disk, you can change the size of the all three, either CPU, memory or hard disk as per your requirement. ठीक है. Storage policy, all this default
विल डिस्कस डिस्क की अलग अलग टाइप क्या होती है, इंपॉर्टेंट इंट्रो क्वेश्चन है ये भी, विल डिस्कस स्टोरेज में हम डिस्कस करेंगे, सब पॉलिसी डिस्कस करेंगे और डिटेल में। नाउ नेटवर्क डिवाइसेस आपको कौन सा सिलेक्ट करना है, क्या क्या ऑप्शन है, निक कार्ड एक्चुअली निक कार्ड, ठीक है, ये भी दो तीन तरह के होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट क्विकली। तो ये एक समरी आ गई, न्यू वर्चुअल मशीन, यू हैव गिवन दिस नेम, कौन से फोल्डर में जाएगी डिफॉल्ट, किस ES6 पे है, कौन से डेटा स्टोर पे, गेस्ट ओएस कौन से इंस्टॉल करने वाले हो आप, CPU कितना दिया, रैम, निक टाइप, ठीक है, कंट्रोलर, हार्ड डिस्क, ये 10 GB साइज, फिनिश। एक ब्लैंक मशीन मैंने बना दी, इसमें OS भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं बाद में, राइट। सो ये पूरी एक स्ट्रक्चरिंग हो गई हमारी, क्या हो गई, एक स्ट्रक्चरिंग हो गई कि किस तरीके से हमारा इन्वायरमेंट में एक सेटअप होता है। मैं इसका एक डायग्राम खेलते रहे everyone, ठीक है, स्निपिंग टूल ये रहा, वन सेकेंड, ऑलराइट। तो ये सबसे टॉप पे हमारा वी सेंटर रहेगा, उसके बाद डेटा सेंटर, उसके बाद क्लस्टर, उसके बाद ES6, then below ES6 you have multiple virtual machine. So a vCenter can have number of data center and a data center can have so many cluster, multiple cluster हो सकते हैं एक ही data center में, and one cluster can have multiple ESXi host, ठीक है। रिमेंबर एक क्लस्टर के अंदर सारी ESXi कॉन्फ़िगरेशन सेम होनी चाहिए, मतलब उसके सबके वर्जन सेम होने चाहिए, उसमें डेटा स्टोर सब में विजिबल होना चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं, टाइम टू टाइम हम डिस्कस करेंगे, जब भी वो क्लस्टर का पार्ट बन सकते हैं। So one cluster can have multiple ESXi hosts and each ESXi will also again have multiple VM created on. ये तो हम day 1 से डिस्कस कर रहे हैं, ES6 पे multiple VM, ES6 और hypervisor का काम ही यही है कि to allow us to create multiple virtual machine, उसके रिसोर्सेज को शेयर कराना, रैम, CPU, ES6 का जो फिजिकल होगा उसकी सारी VMs उसको यूटिलाइज करेंगे, शेयर करेंगे, करेक्ट, एनी कंफ्यूजन? क्या नेक्स्ट आगे चलते हैं, लैब को करते हैं मिनिमाइज, ओके। नाउ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो रहा है, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है, बहुत मुश्किल नहीं है, वेरी इजी, स्विच से रिलेटेड है और कह सकते हैं नेटवर्क से रिलेटेड भी थोड़ा सा है, ऑल्दो नेटवर्क की डिटेल जो क्लास होगी वो हम आगे आने वाली क्लासेस में करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए थोड़ा सा बेसिक चीजें हम देख लें। सिंस वी हैव क्रिएटेड एंड इंस्टॉल्ड आवर न्यू ESXi होस्ट, ब्रांड न्यू ESXi होस्ट, फर्स्ट फ्रेश ESX इंस्टॉल किया है, उसे हमने ऐड किया, तो उस पर बाय डिफॉल्ट क्या क्या चीजें नेटवर्क स्विचेस और क्या क्या बनेंगे पोर्ट ग्रुप, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। Okay, now Rahul bhai, I have a question. yeah, go ahead. One data center only have one cluster or multiple cluster? Can anyone answer it? कोई आंसर देगा? add multiple clusters can be there in one data center. Correct. So एक डेटा सेंटर के अंदर you can have multiple cluster, no problem. मैं भी बना देता हूँ ना, ये लो, this is the name of my cluster 2 and I will name it as Punjab since we have few students from Punjab. Now in one of the data center Karnataka I have two clusters. How many? Two cluster, one is Mysore, second is Punjab, right? So better name it as India. No, it looks good. इंडिया के दो स्टेट के अलग अलग क्लस्टर बना दिए, स्टेट या फिर लोकेशंस के, one is in Mysore, one is in Punjab or Batinda, anything. So once you expand it, you will see how many ESX is there.
Since we haven't added any of the ESX in this one, it is blank, but you can add any number of ESX. Any other questions? So same theory for a data center also, right? Means one vCenter have multiple data center. Exactly. Okay, yes, let me create another data center as well. So I should have ideally created it. So let's suppose you can say USA. Okay, so a vCenter can have multiple data center, and a one data center can have multiple cluster, and one cluster can have multiple ESS, and each ESS can have multiple VMs. So if I click on vCenter, these are the tabs, different tab. Okay, I will expand it. It will show you each and everything. Okay, let me minimize. Okay, you can see it. So जब भी आप लोग अगली लैब करना तो ये सब खुद से खेलना, एक नहीं 4 बनाना. क्रिएट 4 डेटा सेंटर, क्रिएट 4 ये 4 क्लस्टर, राइट. और सब चीज को एक्सप्लोर करना, एक ऑप्शन नहीं हर चीज को. समरी में क्या है भाई, टू बी ऑनेस्ट मैं जब लर्न कर रहा था फर्स्ट टाइम VMware, तो मैं एक एक ऑप्शन को बैठ के देखता रहता था. ठीक है, ये क्या है, ये अच्छा यहाँ CPU लिखा हुआ, फ्री कितना है, रैम कितना है. ओके, इसको मिनिमाइज किया, नीचे क्या आ रहा है. ओके, यहाँ से हम vCenter का वर्जन चेक कर सकते हैं, ये रहा. ओके गुड, इसका बिल्ड नंबर क्या है. ओके, ये रहा. Everything, explore everything. Lab is for you only, na. There is no impact, nothing. Reboot it, delete it, use it, maximum utilization. Data center बनाओ, 1 2 3 4 क्लस्टर बनाओ, 2 2 3 3 4 4 ये 6 डालो, ऑन करो, खेलो, ऐड करो, लैब करो 2 2 3 3 4 4 घंटे. पूरे 7 डेज है हमारे पास. संडे आज का दिन है क्लास के बाद, देन मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, 7 डेज. यूटिलाइज इट. लैब आपके लिए तो है ये. ठीक है, तो पूरे vCenter में यहां से हम देख सकते हैं कितने डेटा सेंटर, 2 डेटा सेंटर. आप और बना लो और दिख जाएगा. ठीक है, पूरे vCenter में कितने टोटल होस्ट हैं, अभी तक एक ही ऐड किया तो ऑब्वियसली एक ही दिखेगा, जितने होंगे सब. अच्छा, इस पूरे vCenter में कितने क्लस्टर हैं, 2 हैं. दोनों ही अभी एक ही के अंदर है. यहाँ पे एक मैं बना देता हूँ. तो यूएस में लेट्स सी, मैं एक बनाता हूँ क्लस्टर न्यूयॉर्क NY, और एक और मैं बना देता हूँ इसके अंदर क्लस्टर का नाम सियाटल. शायद कोई लोकेशन हो, आई डोंट नो. तो ओवरऑल in one vCenter we have how many cluster, you can see from this tab. How many cluster, 4 cluster. Okay, how many data center, 2 data center. More, if you want to get more you can create more, no problem. Okay, host, how many VMs, total VM आप एक बार में यहाँ देख सकते हो. मैं अगर और VM क्रिएट करूंगा, सबको आप एक्सपोर्ट कर सकते हो एक्सेल में. यहीं से क्या क्या VM की क्या क्या डिटेल निकाल सकते हो. नेम क्या है VM का, ऑन है कि ऑफ है, स्टेटस क्या है, कनेक्टेड है कि नहीं, मैनेज बाय किस होस्ट पे VM चल रही है, VM का टोटल साइज क्या है, यूज स्पेस, VM का OS कौन सा डला हुआ है, मेमोरी क्या है, सारी डिटेल, अप टाइम क्या है VM का, IP एड्रेस क्या है VM का, VM टूल रनिंग है कि नहीं है, स्टेटस क्या है, CPU मेमोरी गेस्ट परसेंटेज, all the information just one click में सारी VM. If suppose you have 1000 VM in your vCenter server, you just one time click it, all information of all the VM is here with you. क्या फिजिकली आपके पास 1000 मशीन्स रखी है, उनका सबका डेटा एक बार में निकाल सकते हो, बहुत डिफिकल्ट है. निकाल सकते हैं, कुछ स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी, कुछ करना पड़ेगा, बट वर्चुअलाइजेशन का फायदा यहीं से कट से आपने क्लिक किया, एक्सपोर्ट डन. मैं किसी टाइम निकाल के दिखाऊंगा. जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक का भी आप निकालो तो जो जो फील्ड आप सिलेक्ट करोगे सब दिखा देगा वो. ठीक है, तो ये भी एक लैब है. L1 को हम लोग ये सब टास्क देते हैं. कैन यू पुल आउट द रिपोर्ट ऑफ ऑल द VM व्हिच इज रनिंग. बस फिल्टर लगाया एक्सेल में, रनिंग आ गई. ओके, पॉपअप ब्लॉकर को हटा दो. ये सब खेलना है आपको खूब. लैब इसी को तो कहते हैं लैब. ठीक है, नाउ आई नीड टू कॉपी इट, क्योंकि इस vCenter वाले पे
एक्सेल नहीं है तो एक्सेल खुलेगी नहीं CSV, तो इसको हमें पहले कॉपी करना पड़ेगा डाउनलोड फोल्डर से और आप इसको ओपन कर सकते हो। फिर मैं आपको दिखाता हूँ। सो गो टू डाउनलोड में आ गई ये लिस्ट, इसको मैं यहाँ PC पे डालता हूँ। ये सब चीज़ करना आपको लैब में। अब मैं आ गया अपने मेन मशीन पे। इसमें मैं 1 सेकेंड कहाँ पे है, ठीक है, ये एक्सपोर्ट लिस्ट है ना, इसको मैं निकालता हूँ। ओके, ये ओके। सो सपोज 1000 VM पूरी लिस्ट आएगी। नेम, स्टेट क्या है, यू कैन फिल्टर इट, विच VM इज ऑन, विच इज ऑफ, एवरीथिंग, सब कुछ आपको यहाँ से मिल जाएगा, राइट। बहुत कुछ है, कौन से E6 पे रन हो रही है, क्या है, सब कुछ आपको यहाँ दिखेगा। करेक्ट, आगे चलें। लेट्स क्लोज इट। ये सब आपको करना है लैब खुद से, ठीक है। काम करते हैं हम। वापस चलते हैं। ओके, हम डिस्कस क्या करने वाले थे, ये तो हो गया हाउ टू क्रिएट, व्हाट इज द डिफॉल्ट वर्चुअल स्विच क्रिएटेड ऑन ES6, V स्विच 0 बनता है, क्या है, अब उसकी बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी गो टू माय होस्ट, ESXi host। स्लो हो गया, वन सेकेंड। ओके, 10 सेकेंड का टाइमर, 10 मिनट का टाइमर फिर आ गया। बियर विद मी फॉर टुडे, आज के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है, नेक्स्ट टाइम हम कुछ ऑल्टरनेट देखेंगे। ओके, ये वाला था एक्चुअली, ये कंफ्यूजिंग है, इसको क्लोज कर दें, ठीक है। तो अब ES6 को एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन में गए, ES6 पे जब आप क्लिक करोगे vCenter में ऐड करने के बाद, तो बहुत सारे टैब आएंगे, राइट। समरी, मॉनिटर, ठीक है, और कॉन्फ़िगर। अच्छा, एक का मैसेज आया है, लैपटॉप शटडाउन, ठीक है, नो पावर हियर, ओके, कुछ पावर कट है, नो प्रॉब्लम। ओके, सो कॉन्फ़िगर, तो ये सारे टैब हैं, जब आप ES6 को आप ऐड कर लेना तो एक बार सारी चीजें एक्सप्लोर करना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कंपनीज में जो आपका ES6 फिजिकल होता है, मैंने बताया था, तो वहाँ पे आपको दिखाएगा HP का है, डेल का है, बीम का है, CPU मेमोरी कितनी लगी हुई है, सब चीज दिखाएगा, राइट। और देन यू कैन सी द वर्जन हियर 6.5, CPU यूटिलाइजेशन, मेमोरी यूटिलाइजेशन, स्टोरेज यूटिलाइजेशन, सारी चीज आपकी यहाँ पे दिखाएगा। नाउ सेकंड टैब इज मॉनिटर। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या इश्यूज है, हम टास्क में जाके देखते हैं। अभी तो कुछ इस पे चल नहीं रहा प्रोडक्शन, तो इसमें कुछ नहीं दिखाएगा, वरना टास्क में आपको दिखाएगा, इवेंट्स में दिखाएगा, हेल्थ में दिखाएगा, कोई हार्डवेयर प्रॉब्लम है, तो यहाँ सब आप एक्सप्लोर कर सकते हो। नेक्स्ट कॉन्फ़िगर, कॉन्फ़िगर में एक स्टोरेज टैब है, एक नेटवर्किंग टैब है, ठीक है। अभी दो चीजों पे फोकस करो आप, नंबर 1 स्टोरेज, नंबर 2 नेटवर्किंग। इन दोनों में से भी सिर्फ हमें अभी कॉन्फ़िगर में किस में जा रहे हैं, नेटवर्किंग। स्टोरेज की क्लास में स्टोरेज का देखेंगे ना, क्या ऑप्शन है इसमें, वर्चुअल स्विचेस आ गए, वो हमें देखना था। जैसे आप ES6 इंस्टॉल करते हो, इस पे बाय डिफॉल्ट एक वर्चुअल स्विच बना होता है, अभी ये लोड हो रहा है, ये दिखाएगा।
कितने इस पे नेटवर्क अडेप्टर कनेक्टेड है वो आपको यहाँ पे दिखाएगा, फिजिकल अडेप्टर। ये सब चीजें याद रखने की, सब करने की, तभी याद होंगी। हाउ मेनी वर्चुअल NICs आर कनेक्टेड, और फिजिकल NIC actually is connected to my ESX, from where you can see, click on ESX, go to configure, go to networking tab and then physical adapter। इस पे क्योंकि एक ही लगा हुआ है तो VMNIC 0 एक ही दिखा रहा है, अगर 10 होंगे तो सारी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। So this is the process to check how many physical adapter or physical NIC are connected to my ESXi host। Okay, fine। Now switches, virtual switch हमारा एक बना हुआ है यहाँ पे ऑलरेडी। Let me maximize it once। Okay, अब शायद दिख रहा होगा क्लियर, राइट। तो ये है एक्चुअली वर्चुअल स्विच। क्लास शायद थोड़ी देर में डिस्कनेक्ट हो जाएगी, नो इश्यूज, विल रिकनेक्ट बैक। ओके, तो बाय डिफॉल्ट जैसे आप ESX इंस्टॉल करते हो तो एक स्टैंडर्ड स्विच बना हुआ होता है। हमारे पास दो तरह के स्विचेस होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड और स्टैंडर्ड। तो कैसे स्विच बना हुआ डिफॉल्ट मिलता है? स्टैंडर्ड स्विच नंबर 1। उसका डिफॉल्ट, उसका नाम क्या होता है? vSwitch 0। ये सब बाय डिफॉल्ट बनता है। as soon as you install a ESXi host, a new switch is created, vSwitch 0, which is of type standard टाइप का एक स्विच बनता है। ठीक है, मैंने क्लिक किया, थोड़ा सा स्लो लोड हो रहा है, नो इश्यूज। ठीक है, और इसमें बाय डिफॉल्ट दो पोर्ट्स बनेंगे, एक मैनेजमेंट नेटवर्क के लिए यानी ESX का अपना IP ट्रैफिक, ये रहा मैनेजमेंट नेटवर्क कहलाएगा, जो ESX का अपना IP है VMK0। सेकंड एक मशीन्स के लिए बनेगा जिसपे आपकी वर्चुअल मशीन्स का ट्रैफिक फ्लो होगा। तो दो इस पे पोर्ट्स बनेंगे। ये स्विच है, उसका नाम vSwitch 0, और ये इसके पोर्ट्स हैं, एक वर्चुअल मशीन के लिए और कर्नल के लिए। कर्नल मतलब इसका मैनेजमेंट के लिए। दो तरह के हमारे पोर्ट बन गए। तो अभी तक हमने क्या देखा, जैसे हम ESX इंस्टॉल करेंगे बाय डिफॉल्ट उस पर एक स्टैंडर्ड स्विच बनेगा जिसका नाम vSwitch 0 होगा, और बाय डिफॉल्ट उस पर ये दो पोर्ट्स बने हुए मिलेंगे आपको। एक होगा पोर्ट ग्रुप जो कि वर्चुअल मशीन के लिए होगा जिसका नाम VM नेटवर्क करेगा, और एक मैनेजमेंट के लिए पोर्ट बनेगा जिसका नाम मैनेजमेंट पोर्ट बनेगा। ये दो डिफॉल्ट पोर्ट्स बनेंगे, ये पोर्ट ग्रुप है और ये पोर्ट है, और ये स्विच है। कोई कंफ्यूजन? एनी क्वेश्चन, एनी कंफ्यूजन? Is it possible you repeat this topic again? ओके, ठीक है। Only management network and VM network part. या ओके ओके ओके, श्योर श्योर, मैं भी रिपीट करता हूँ। कोई क्वेश्चन और किसी का अभी तक इसको लेके? दो टाइप के स्विच कौन कौन से बताया मैंने? स्टैंडर्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड। एक स्टैंडर्ड और एक डिस्ट्रीब्यूटेड। स्टैंडर्ड स्विच जो है डिफॉल्ट बनेगा जब भी आप ESX, उसका नाम क्या होगा? पहला स्विच जो स्टैंडर्ड बनेगा vSwitch 0। ठीक है, और एक कर्नल पोर्ट होगी जो कि मैनेजमेंट के लिए होगी, और एक VM नेटवर्क के लिए होगी। ठीक है, ऑल राइट। ये आपका जो भी आप इसमें इस पर्टिकुलर स्विच में निक दोगे, मैं इसका डायग्राम एक प्रॉपर बना के भी दिखाता हूँ। One second।
we can go first of all हमारे पास एक ESX सर्वर है, ये एक्चुअली मेरा कोई एक फिजिकल सिस्को का फॉर एग्जांपल स्विच है, फिजिकल स्विच, उससे मेरा एक फिजिकल अडेप्टर यानी फिजिकल निक मेरा ESX का कनेक्टेड है, जहां से इसको कनेक्शन मिल रहा है। ओके, इसी को VMNIC 0 जो मैंने अभी फिजिकल अडेप्टर दिखाया था वो इसी का नाम है। तो अब मुझे ESX पे एक स्टैंडर्ड स्विच बना हुआ मिला, बाय डिफॉल्ट मिला मुझे बना हुआ, ठीक है, जिसका मैं नाम कह रहा हूँ VSWITCH vSwitch 0। ये vSwitch बाय डिफॉल्ट बना हुआ मिला। हम भी बना सकते हैं स्टैंडर्ड स्विच, और फॉर एग्जांपल मैंने एक और बना लिया, इसका नाम मैं vSwitch 1 रख सकता हूँ। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा।